Good morning dear students. So today we will discuss about some numericals related with the representation for the rate of reactions and for the calculation of average and instantaneous rate of reaction by the given informations. So here I have written 4 questions. Let's see how to solve these questions. Your question number 1 is 2NO2 plus F2 gives 2NO2F, and what you have to tell? You have to tell the instantaneous rate of reaction in term of rate of appearance of NO2F, means for the rate of appearance of the product, and rate of disappearance of NO2 means one of the reactant and another reactant is F2. So you have to tell the rate of appearance, means you are to write down the representation in term of the rate of reaction for the product and the reactant. So first we will solve first one, the rate of appearance of NO2F. So in case of instantaneous rate of reaction, we used to write small d. किसका यूज करते हैं आप? Rate of reaction in term of the product, ठीक है, that would be equal to, इंस्टेंटेनियस लिखना है तो यहाँ d का यूज करेंगे, अगर एवरेज पूछा गया होता तो डेल का यूज करते हैं. सो d कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 upon dt, because we are talking about the rate of appearance of NO2F. So we will not put negative sign over here, यहाँ positive रहेगा, ठीक है. And if we are talking about the balance equation, तो stoichiometric coefficient के according हम देखें यहाँ पर क्या है 2. And as I have proved you कि जो आपको stoichiometric coefficient होता है उसको आप upon में ले आते हैं. So we will write down 1/2 over here. So that would be the rate of, आप यहाँ पर mention कर लेंगे rate of appearance of NO25. ठीक है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने इतना लिखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2O5, ठीक है. सेकेंड वन दैट यू हैव टू टेल इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, किसका निकालना है हमें? NO2 का, ठीक है. तो NO2 के केस में क्या हो जाएगा? लेट्स सी ओवर हियर, NO2 इज द रिएक्टेंट, सो वी विल पुट माइनस साइन. रिएक्टेंट के केस में आपको ध्यान रखना है नेगेटिव साइन पुट करना है, क्योंकि डिसअपीयरेंस के केस में हम यहाँ लगा रहे हैं, यानी इसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी. देन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ध्यान देंगे. हियर वी आर हैविंग 2, सो वी विल राइट डाउन हाफ हियर, ओके. देन डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt. इज दैट क्लियर? इन द सिमिलर मैनर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2. Okay, now let's see here. It is also a reactant, so we'll put negative sign over here. No stoichiometric coefficient, or you may say 1 is there, so 1/1 is equal to 1. So we won't write anything as a stoichiometric coefficient. Then D concentration of F2 upon dt. So that is being asked in the question, rate of appearance of NO2F, rate of disappearance of NO2, and rate of disappearance of F2. Like this you will to write the representation if you would be asked in the questions. So that is about your answer number 1. Thereafter question number 2, a chemical reaction 2A gives 4B plus C in gas phase occur in a closed vessel. The concentration of B is found to increase by 5 into 10 raised to the power minus 3 mole per liter in 10 seconds. Calculate rate of appearance of B and rate of disappearance of A. So here also you have been asked the same question, but यहाँ representation की जगह आपको calculation भी करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको value given है. तो आपको reaction क्या बताई गई है? Reaction है आपकी 2A gives 4B plus C. तो व्हाट आई सजेस्ट, सबसे पहले आप क्या मेंशन कर लीजिए, रिप्रेजेंटेशन आपको मेंशन कर लेना चाहिए. रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी इक्वल टू, हम सबके टर्म्स में लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है. दैट शुड बी अ वे, तो वहाँ आपकी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते. जरूरत नहीं है तब भी आप लिख लीजिए उसको. सो इफ आई राइट इन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट A, so that would be minus stoichiometric coefficient 2, so that would be half. Thereafter dA upon dt
इक्वल टू, क्योंकि मैंने बताया आपको डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का रेट क्या होता है, सेम होता है किसी पर्टिकुलर बैलेंस रिएक्शन के लिए. हियर वी आर हैविंग 4p, सो वी विल राइट डाउन 1/4 dB अपॉन dt. यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं मेंशन करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट. इज इक्वल टू, C पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो दैट वुड बी D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन. हमसे पूछा क्या गया है और यह गिवन हमें किस चीज की वैल्यू है. लेट्स सी, वी हैव बीन गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज फाउंड टू इंक्रीज बाय, इट इज फाउंड टू इंक्रीज बाय. ठीक है, इट मींस यहाँ पर आपको चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B दे दिया गया है, यानी आपको dB की वैल्यू ये गिवन है यहाँ पर एंड dt की वैल्यू क्या गिवन है, 10 सेकेंड्स. ठीक है, सो dB अपॉन dt का वैल्यू आपको गिवन है एंड यू आर टू कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B. तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस dB अपॉन dt, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज 5 into 10 raised to the power minus 3 by 10. यानी dB अपॉन dt का वैल्यू आपको यहाँ पर 5 into 10 raised to the power minus 3 upon 10. It means that would be 5 into 10 to the power minus 4. यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, that would be equal to, लिख देंगे यहाँ पर 5 into 10 raised to the power minus 4. तो ये आ गई हमारी dB अपॉन dt की वैल्यू. ठीक है, क्लियर. सुनाओ, सॉरी यहाँ माइनस साइन नहीं है, नो माइनस साइन वुड बी देयर, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. thereafter rate of disappearance of A. now what we are having the value of dB upon dt. अब rate of disappearance of A अगर मुझे कैलकुलेट करना है, rate of disappearance of A मुझे कैलकुलेट करना है और मेरे पास वैल्यू किसकी है, dB अपॉन dt की. तो हम रिलेशनशिप किस में निकालेंगे, इन दोनों में. हमारे पास दोनों टर्म इक्वल करके क्या है, दैट इज हाफ dA अपॉन dt इज इक्वल टू 1/4 dB upon dt. So this value I know and I am to calculate this value. Rate of disappearance of A कैलकुलेट करना है, यानी मुझे dA अपॉन dt का वैल्यू कैलकुलेट करना है. dA अपॉन dt would be equal to, अब आप क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे. So you would be getting 2/4 dB upon dt. So that would be 1/2. Now this value we are having 5 into 10 to the power minus 4. So half into 5 into 10 to the power minus 4. ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2.5 into 10 raised to the power minus 4. और यूनिट आप हमेशा मेंशन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा. यहाँ पे हमें यूनिट दे रखी है मोल पर लीटर, टाइम दे रखा है सेकंड में, तो दोनों ही जगह क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड. आर यू गेटिंग मी? योर यूनिट वुड बी मोल liter inverse second inverse. In the similar manner over here also mole liter inverse second inverse would be the unit. So like this you are to solve this question. इस तरीके के और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग. डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के रिप्रेजेंटेशन लिखने की कोशिश कीजिए. ठीक है, व्हेन यू वुड बी आस्क्ड फॉर द रेट, तब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे. जैसे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पूछा है तो स्टोइकियोमेट्री के साथ नहीं है वो, दैट इज dA upon dt. As we have noticed over here also, rate of appearance of B का मतलब क्या है, dB upon dt. Now let's see the next one. थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. साथ में मैं क्वेश्चन भी हटा देती हूँ जिससे बोर्ड पर थोड़ी जगह बन जाए. ये क्वेश्चन नंबर 3 इज, रिएक्शन गिवन है आपको, that is N2O5 gives 2NO2 plus half O2.
the value of rate of disappearance of A of N2O5 is equal to this much mole per liter per second. Calculate the formation of NO2 and O2. It means as I have told you, सबसे पहले सेल आप रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मेंशन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में. रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी इक्वल टू, if we'll see for the reactant, तो reactant के टर्म में क्या रहेगी, माइनस. Now no stoichiometric coefficient is there, so that would be d N2O5 upon dt, and that would be equal to NO2 के टर्म में देखेंगे, प्रोडक्ट के टर्म में, so that would be having plus sign 1/2 d concentration of NO2 upon dt is equal to, here we are having half as stoichiometric coefficient. अब हाफ के केस में क्या होगा, 1/1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा. तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या मेंशन कर लेते हैं, 2d concentration of O2 upon dt. What we have to find out, हमें दे क्या रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, यानी हमें वैल्यू क्या दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है d N2O5 upon dt का वैल्यू गिवन है, दैट इज 6.25 into 10 raised to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ठीक है, हमें ये वैल्यू गिवन है और हमें इन दोनों का अपीयरेंस पूछा गया है. ठीक है, तो हम इन दोनों का अपीयरेंस कैसे निकालेंगे, 1 by 1 निकालेंगे, रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ निकालकर. जैसे दिस वन, इफ आई एम टू कैलकुलेट d मींस अपीयरेंस ऑफ NO2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सो d NO2 अपॉन dt वुड बी इक्वल टू, ये हाफ का जो 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर चला जाएगा, सो दैट वुड बी माइनस 2 d concentration of N2O5 upon dt. Now I am having the value of d N2O5 upon dt, यानी मेरे पास वैल्यू है 2 multiply by this value 6.25 into 10 raised to the power minus 3, and by multiplying it I will calculate the answer. ठीक है, so multiply करके हम इसका आंसर निकाल देंगे. Thereafter what I am to calculate, I am to calculate the rate of appearance of O2 also. ठीक है, O2 का appearance निकालना है. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कैसे निकालेंगे आप, d of O2 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब मुझे यही वैल्यू गिवन है ना, चाहे मैं इसके टर्म में निकाल लूं, लेकिन मेरे पास यही वैल्यू गिवन है तो इसी के टर्म में निकालने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट विल हैपन नाउ, ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा. सो आई वुड बी गेटिंग माइनस हाफ d N2O5 अपॉन d. What will I do, minus half and N2O5 upon dt का वैल्यू मेरे पास क्या है, into 6.25 into 10 raised to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग. नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती चली जा रही है रिएक्टेंट की. सो दोनों के रिलेशनशिप में निकालेंगे. यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं किसका, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट का. ठीक है, सो नो नेगेटिव साइन वुड बी देयर. नेगेटिव साइन क्योंकि केवल हमारा क्या बताता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, सो दैट वी विल नॉट टेक हियर. डायरेक्ट आप कैलकुलेट करेंगे 2 into 6.25 10 raised to the power minus 3 and half into 6.25 10 raised to the power minus 3, like this. So now let's see the next question. ये कैलकुलेट कर लीजिएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 solution has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially concentration of N2O5 is equal to 2.33 mole per liter after 184 minutes. ठीक है, हमें यानी इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है किसका, N2O5 का, N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है. सो गिवन क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 2.33, टाइम दे रखा है 184 मिनट्स, इट इज रिड्यूस टू 2.08 मोल पर लीटर. ठीक है, यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना दे रखा है हमें, दैट इज 2.08 मोल पर लीटर. एंड यहाँ पर टाइम पीरियड कितना दे रखा है, आफ्टर 184 मिनट्स. यानी हमें जो T का वैल्यू दे रखा है, dt का वैल्यू दे रखा है, वो दे रखा है 184 मिनट्स. ठीक है, रिएक्शन गिवन है हमें, रिएक्शन गिवन है, क्या रिएक्शन है, दैट इज 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. Now what you have to calculate, you have to calculate average rate, you have to calculate average rate in hours, minute, second and what is the rate of production of NO2. हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट इन आवर, मिनट and second, and we are to tell what is the rate of production of NO2. NO2 का प्रोडक्शन रेट बताना है और बाकी हमें एवरेज रेट बताना है आर में, मिनट में और सेकंड में, किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में. ठीक है, इट मींस व्हाट वी आर आस्किंग फॉर डेल ऑफ N2O5 अपॉन डेल T. ठीक है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, दैट वुड बी द रेट. ठीक है, यही हमारा रेट हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा. सो माइनस, अब हमारे को यहाँ पर वैल्यूज क्या दे रखी हैं, N2O5 फाइनल माइनस N2O5 इनिशियल. यही तो हम कैलकुलेट करते हैं ना, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम चेंज, यानी डेल टी का पूरा वैल्यू हमें 184 गिवन है यहाँ पर. फाइनल हमें कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, दैट इज फाइनल हमें दे रखी है 2.08 माइनस इनिशियल हमें दे रखी है 2.33 अपॉन 184. एंड व्हाट वी हैव टू नोटिस, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें लगाना है, दैट इज हाफ. सो दैट वुड आल्सो बी हाफ एंड इट वुड आल्सो बी हाफ. सो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट जब कर लेंगे तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा. सो द आंसर वुड बी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स. हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में दैट यू हैव टू टेल द रेट इन आवर, मिनट एंड सेकंड. मिनट में हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन सेकंड. सेकंड में इसे कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास जो मिनट है दैट इज एन इनवर्स. ठीक है, तो मिनट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा. वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इधर हम 60 से मल्टीप्लाई करें, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जो भी हमारे यहाँ आंसर आता है उसको हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे. वी वुड बी एबल टू गेट द वैल्यू इन seconds. Okay, so here half 2.08 minus 2.33 upon 184 into 60, we would be able to get the answer in seconds. अब हमारा जो आंसर आएगा that would be mole liter inverse second inverse. और हमें R में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ये वैल्यू किस में है, मिनट में है. अब मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू मल्टीप्लाई इट, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन आर.
यानी व्हाट वी आर टू डू, हाफ 2.08 माइनस साइन रहेगा, जब ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा 2.33 अपॉन 184 into 60. So that would be in R. So you have to calculate this value. Now what we have to calculate? We have to calculate the rate of production of NO2. NO2 का प्रोडक्शन रेट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं तो ये हो जाएगी हमारी -12 del N2O5 अपॉन del T इज इक्वल टू 1/4 del कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन del T। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दिस वैल्यू वी आर हैविंग, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला जो आंसर आएगा ये यही वाली वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है। या फिर इसको ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे, हाँ जी यही वाली वैल्यू आएगी आपकी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, NO2, इसकी वैल्यू सपोज आपके पास क्या है, x है, ठीक है। इसकी वैल्यू सपोज यहाँ मेरा आंसर आ रहा है x, सो x वुड बी इक्वल टू 1/4 del NO2 अपॉन del T। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, del कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन del T। सो व्हाट आई एम टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को इधर ले जाएंगे, ये जो मेरा आंसर x आया 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 into x। सो व्हाट आई एम टू डू, आई एम टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ x टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, आई वुड बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ del of NO2 अपॉन del T। आई थिंक मस्ट बी क्लियर। भाई ये वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट कर ली यहाँ पर, अगर ये सपोज मेरी वैल्यू x आती है तो मुझे जब del NO2 अपॉन del T यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना होगा, सो व्हाट आई हैव टू डू, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर चला जाएगा, इट वुड बी 4 टाइम्स देन दैट ऑफ N2O5। सो लाइक दिस यू आर टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू विल आस्क मी, ओके। डू नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, दीज आर वेरी सिंपल, बहुत इजी हैं। बस एक बार अगर आपको एक दूसरे से कोरिलेट करना आ जाता है, रिलेशनशिप को लिखना आ जाता है, तब आप आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो डू प्रैक्टिस फॉर दैट। थैंक यू।